और बच्चों आपके लिए एक और बड़ी गुड न्यूज है, आप लोगों के लिए हमने पहली बार हिस्ट्री में एक ऐसा कोर्स प्लान किया है जो आपको आपके कॉलेजेस की जर्नी को शुरू करने से पहले कोडिंग पे महारथी बना देगा और आपको वो एक्सपर्टीज देगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है कि मैं कॉलेज की शुरुआत एक पंच के साथ करूं, क्योंकि आपको पता है आने वाला जमाना कोडिंग का, एआई का है ना, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें अगर आप आगे नहीं होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, सिविल के बच्चे को भी, केमिकल के बच्चे को भी कोडिंग आज की डेट में सीखनी पड़ती है एज अ बैकअप प्लान। और आपको पता है जो आने वाला ट्रेंडिंग जमाना है, आपको एक कदम आगे चलना है। तो आप अपने कॉलेजेस की शुरुआत अगर एक कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करना चाहते हैं, हमने आपके लिए एक अमेजिंग प्लान किया है। कोडिंग का कोर्स बड़ा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है और खुद इसे मैं आपको बता दूं, हमारे एक आईआईटी के प्यारे प्यारे एल्यूमिनाई हैं, ठीक है, वो खुद आपको इसके अंदर हेल्प या गाइड करने वाले हैं। तो आप फॉर्म भरिए, आगे आपको मेरी पूरी टीम इस बैच के बारे में आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको अपडेट करेगी। यू विल गेट अ कॉल और फिल दी फॉर्म। कोई बच्चा अगर कोडिंग के लिए अपनी शुरुआत करना चाहता है विद द पंच फॉर योर कॉलेज लाइफ बच्चों। A fun problem. It's a warm up problem. Okay, so this is not a tough problem. It is just to check your concepts to begin with. तुम्हारे concepts check करने के लिए एक problem है। आओ चलो इसको एक बार क्विकली अटेम्प्ट करके देखते हैं। कम क्या बोल रहा है? So this is, आपको यहाँ पे 4 options are given and these are limits which are given to you, and look carefully. This is given to you. X tends to infinity, f of x is m. Remember, x is tending to infinity. Quickly, how fast can you do it? So A, B, C and D. There are 4 options. Check carefully. Come. And then we'll discuss each options one by one. But again, this is a warm-up problem. This can be a easier problem for J Advanced. All right. Have you seen it? Okay, so let's look at these options one by one. Again, should we start? Chalo, come. So the first option is limit x tends to infinity, x sine 1 upon x fx. Is it m? Let's quickly check. By the way, let's check what the format is. So it says limit x tends to infinity, x sine 1 upon x. All right, f of x, leave it as it is. See what is happening. Where is it going? कहाँ जा रहा है ये? X tends to infinity. So 1 upon x tends to what? 0. All of you know. So sine 1 upon x will tend to what? It will tend to 0. All of you understand this? So bhai, this is going to 0, but this is going to infinity. Infinity into 0 is indeterminate. So what we can do? We can convert this into, I can write this as sine 1 upon x. I can take this in the denominator. लेके जाऊँ इसको denominator के अंदर, तो क्या हो जाएगा? This will become 1 upon x in the denominator. और यहाँ पे f of x. So now this is a very what? Recognizable format. ये format तो सबको पता है. ये कितना हो गया? Sine, now this is tending to 0. Sine something upon exactly that something in the denominator. जो sine के अंदर लिखा है, exactly that thing is written in the denominator as well. It is also tending to 0. So now this entire thing, बच्चों, now this entire thing is going to what? Now it is going to 1. And where is this thing going? F of x as limit x tends to infinity. ये कहाँ पे जा रहा है? This will go to m. That's it. So first one is definitely correct. No doubt about it. Is that clear, all of you? Right? What about the second one? Sine of fx. No problem. As x tends to infinity, this is going to m. So net entire thing is going to sine of m. Whatever that value is, m is a finite number. Sine of, मतलब f of x is what? It is a finite number, right? यहाँ तक तो कोई doubt नहीं है. This is clear. Now what about the option C? Let's look at the option C. Come, let's see option C. What does it say? X sine e की power minus x. Now this is tricky one. ध्यान से देखो. So x, it is tending to infinity. Sine e raised to power minus x. Where is it going? As x tends to infinity, e raised to power x tends to where, बच्चों? Infinity, but e raised to power minus x. It is what? 1 upon e की power x. It tends to 0. All of you know this or not? सबको पता ही है. You can see it graphically as well. Remember, I always use the graphs. This is e की power x graph. This is the graph of e की power x. As x tends to infinity, e की power x goes to infinity. But what is the graph of e की power minus x? This is the graph of e की power minus x. This is the graph of e की power minus x. So as x tends to infinity, e की power minus x tends to 0.
e की पावर माइनस एक्स टेंड्स टू 0. So this thing is tending to 0. Agree? Sin something something is tending to 0. But ये भाई साहब जा रहे हैं कहाँ पे? इन्फिनिटी पे. So what will I do? The same thing again. What I'll do? Sin e raised to power minus x. I want to create this in the denominator. Let me create it in the denominator. Create कर दिया. If I create something, तो मेरे को भाई उसको जो पाप किया उसका प्रायश्चित भी तो करना पड़ेगा. If you have committed a sin, you have to repent for it. So I have multiplied and divided by this. Yes, and there was an x already here. ठीक है, fx was also there. Let it be. Now what happens? Now this thing is tending to 1 because sin something upon something, both somethings are tending to 0. This entire thing goes to 1. अब इसका क्या करेंगे बच्चों? इसका क्या होगा? What will happen to this? This is what? This can be written as x upon e raised to power x. Limit x tends to infinity. What is the format? Infinity upon infinity. The format is infinity upon infinity का format है. L'Hopital. Immediately apply L'Hopital. सबको आता है L'Hopital. As you apply LH rule, L'Hopital rule, इसका differentiation upon इसका differentiation, what will it become? Limit x tends to infinity. 1 upon x का differentiation 1, e की power x differentiation e की power x. No problem. Now where is this going? 1 upon infinity. ये कहाँ जा रहा है? This is going to infinity. So 1 upon infinity is tending to what? This is tending to 0. So actually that thing C, the C1 is actually tending to, this entire thing is tending to 0 multiplied by fx. So net answer should actually be 0. This is wrong. So your option C is wrong. Got it? And the last one is correct. Is it correct? Yes, last one is correct. Can you tell me how? Sin x upon x. Sin x upon x, f of x, limit x tends to infinity. Common mistake. Sir, sin x upon x तो 1 होता है. अरे नहीं होता रे 1. Sin x upon x is 1 only when x is tending to 0. So ये क्या हो रहा है? This is x is tending to infinity, remember. So sin of infinity is what? Sin of some large number. है ना? अब साइन के अंदर कोई भी नंबर रखोगे, इफ यू पुट एनी नंबर, यू विल गेट सम फाइनाइट वैल्यू between -1 to 1. Agree? So actually this numerator is a finite value, whereas the denominator is tending to infinity. So basically this is what? This is finite upon infinity multiplied by fx, which is tending to m. So फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी, कोई भी फाइनाइट नंबर अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? टेंडिंग टू 0. दैट वाज द ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सो ओनली ऑप्शन रॉन्ग वाज बच्चों कौन सा? ओनली द सी ऑप्शन वाज रॉन्ग, राइट? सो आंसर इज सी. यही क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज फॉल्स? सो विच वन इज द फॉल्स वन? सी इज द फॉल्स वन. गॉट इट? इज दिस क्लियर? ठीक है, is this clear all of you? So this is conceptual problem. So these are the kind of problems that you should expect in your JEE Advanced. So I am taking those kind of problems which are not very lengthy today, right? Because we want to focus on concepts, and I am taking those problems which will help you visualize. So lots of visualization will be involved in today's problems. All right, makes sense? If you got it, jaldi say yes in the chat. Jaldi say yes in the chat if you understand. And then we will go to this one. Now we'll come to this one. Once you have done, come to this one. Got it? Awesome. Very good. Look at this one. Achha, by the way, by the time you're reading it, see, remember math and physics in JEE Advanced is really complicated, right? So it is important to choose your questions wisely, right? So you have given JEE Mains, you know, in JEE Mains also you can't attempt all the questions. In math you attempt very less problems. In JEE Advanced you will attempt even lesser problems, or भी कम problem solve कर पाओगे, right? So you know, if you are reading a problem and understanding it, if after minute or 2 minutes
इफ यू फील यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रॉब्लम, लीव इट, डोंट वेस्ट योर टाइम. ठीक है, choose your problems wisely, choose those problems which you have confidence of solving, right? So that is the trick. You don't have to solve all the problems. Now look at this, consider the regions. ये region तो सबको पता है, x square plus y square is less than equal to 100. It is a square, it's a circle of radius 10. Less than equal to means inside the circle, all of you know this. Now sin x plus y greater than 0, this is something I want you to visualize graphically. Visualize this graphically. And area of the region, so this area inside the circle, this area, you have to find out the intersection between the two, right? All right. Oh yes, Hanan, that is a very good session. You guys can actually watch it. Now come here. देखो क्या करते हैं अपन, let us look at it very carefully. X square plus y square less than equal to 100. All of you know what is this? This is a circle of radius 10. The radius is 10, मतलब this is 10, this is 10, 10, ठीक है ना? और less than equal to 0 means what? You want the area inside the circle. यहां तक तो no doubt. Now sin x plus y greater than 0, बच्चों do you know if I say sin theta greater than 0, then what do you understand? If I say sin theta greater than 0, अपने को तो ग्राफ पता है, we can visualize graph as well. You know this is sin का ग्राफ, right? All of you know this. So do you realize that sin is positive between 0 से pi? Sin क्या होता है? Positive होता है. Then between 0 pi, 2 pi, 3 pi, between pi to 3 pi, again positive. Then minus pi to minus 2 pi, again positive. So between 0 to pi, 2 pi to 3 pi, sin is positive. But यहाँ पे in the place of theta, बच्चों, what is written? X plus y is written. इसका मतलब actually what I mean is x plus y, if x plus y lies between 0 से pi, x plus y अगर lie करता है 0 से pi के बीच में, right? Then I know that sin x plus y is positive, and so on and so forth. X plus y between 0 to pi, x plus y between 2 pi to 3 pi and so on. बट x प्लस वाई बिटवीन 0 से पाई का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन, गाइस स्ट्रेट लाइन. बताओ x प्लस वाई इक्वल टू 0 कब होता है? अरे ऑल ऑफ यस नो, x प्लस वाई इक्वल टू 0 मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन. ये रही स्ट्रेट लाइन, सी केयरफुली. डू यू रियलाइज दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 0 और y इक्वल टू माइनस एक्स? अरे ये तो अपने को पता है. नाउ व्हाट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई? अपने को ये भी पता है. व्हाट इज x प्लस वाई इक्वल टू पाई? इट इज अ लाइन जिसके x और y इंटरसेप्ट दोनों पाए हैं, जिसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों के दोनों पाए हैं. अरे वाह, ये भी मुझे पता है. सो दिस इज पाई, दिस इज ऑल्सो पाई, अज्यूम. ओके, देन दिस लाइन अगर ये पाई है बच्चों, दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो पाई. डू यू रियलाइज दिस लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई? Similarly, this line will be, this is 2 pi. So this is x plus y is equal to 2 pi and 3 pi कितना होगा? 9 point something. This will be x plus y is equal to 3 pi. This is x plus y is equal to 3 pi. And somewhere here will be 10. Somewhere here will be 10. कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है? Now, what did I say? When x plus y lies between 0 to pi, when x plus y lies between 0 to pi, so let me make that portion for you. Which color? This color. Look at this portion. In this shaded portion, do you realize x plus y lies between 0 and pi? Right. So do you realize between this shaded portion, sin x plus y will be positive? Sin x plus y will be positive. Yes, because x plus y lies between 0 to pi. So sin x plus y is positive. Similarly, when will it be positive? When sin lies between 2 pi to 3 pi. So ये 3 pi, this is 3 pi here. So again this portion. Why am I not extending the shaded region? मैं shaded region को extend क्यों नहीं कर रहा हूं? Because I want inside the circle.
So I'm keeping the shaded region inside the circle. I'm automatically getting the intersection. Similarly, if you extend it, तो क्या हो जाएगा? Can you make it on the other side as well? So ये हो जाएगा आपका minus pi. This is minus 2 pi. This is minus 3 pi. This is minus 4 pi. This is minus 10. Similarly, you can make these as well. Similarly, you can make these as well. और कहां कहां पे पॉजिटिव होगा बच्चों? कहां कहां पे पॉजिटिव होगा? सिमिलरली 4 यहां से जाएगा, दिस पॉजिटिव, नाउ दिस पॉजिटिव, नाउ दिस पॉजिटिव. समझ में आया? दिस इज द पोर्शन. आई हैव मेड अ मोर क्लियरर डायग्राम फॉर यू. दिस इज द क्लियरर डायग्राम. बट डिड आई मेक सेंस? समझ में आया आपको? तो अपन ने बच्चों क्या किया है यहाँ पे? व्हाट वी हैव सिंपली डन इज हमने विजुअलाइज किया साइन पॉजिटिव कब होता है. व्हेन इज साइन पॉजिटिव? साइन पॉजिटिव होता है जब साइन के अंदर वाली चीज 0 से पाई के बीच में लाया करती है. एंड व्हाट इज साइन के अंदर वाली चीज? व्हाट इज इनसाइड द साइन? x प्लस वाई. तो अपन ने देखा कि x प्लस वाई जब 0 और x प्लस वाई व्हेन इट बिकम्स पाई, in between that sign is positive. When x plus y is 2 pi and when x plus y is 3 pi, then it between that sign is again positive. Then sign is positive beyond 4 pi and 5 pi. But I want inside the circle. अब आपका आंसर आ गया. अगर आप ध्यान से देखो the shaded portion, do you realize कि this and this is mirror image? ये दोनों mirror image है mirror image. Similarly बच्चों ये दोनों mirror image है. These two are mirror image. See carefully. Similarly, these two are mirror images. Similarly, these two are mirror images. And similarly, this and this is mirror image. है कि नहीं? अरे इसका मतलब भैया जो पोर्शन आपने खाली छोड़ दिया वो दूसरी तरफ भर गया. शेडेड नॉट शेडेड, शेडेड नॉट शेडेड. देखा? शेडेड नॉन शेडेड, शेडेड नॉन शेडेड, shaded non shaded, then shaded non shaded. इसका मतलब क्या हो गया? half of the circle is shaded, half of the circle is not shaded. आंसर आ गया. इसका मतलब the shaded portion or the intersection between both is actually exactly half of the circle. So इसका मतलब if I take the intersection between the two, जो क्वेश्चन था is nothing but half of area of circle. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? half of कितना ये? This is pi r square, that is 100 pi. कितना आ जाएगा आंसर? It should be 50 pi. That's your answer. है मजेदार प्रॉब्लम. कितने बच्चों को समझ में आया? How many of you got it? Yes or no? So these are again. So why am I taking these problems? This is how you think in many of the JEE advanced problems, because they're designed for you to visualize, think a bit critically and not very lengthy in terms of calculation. ठीक है? जिनको डाउट है एक बार वापस से मेरे लेक्चर को रिवाइज करना. जस्ट गो बैक, run it once again and you'll get it. Give some of your time. So at times when the teacher teaches especially such problems, you know, you follow a bit. लगता है हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आया. So in that case you should always go back, pause, do it yourself, put your own brain, struggle with it, then see. तब समझ में आ जाएगा. Then you'll always get it. All right? ठीक है? Yes, Sahil. Yep. All right. Now, so answer is 50 pi. It's a beautiful problem. I love it. ये problem actually originally it came in KVPY. So remember there used to be a KVPY exam earlier. So this problem came in KVPY. I loved this problem. So I took it. ठीक है? तो ये problem KVPY में आई थी, वहां से उठा के मैं यहाँ पे लेके आ गया आपके लिए. ठीक है? आ जाओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन. समझ में आया ना सबको? x प्लस वाई 0 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव था, फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच में पॉजिटिव था, फिर 4 पाई से 5 पाई के बीच में पॉजिटिव था, और सर्कल के अंदर लेना था अपने को. ये मेन कंसेप्ट था. और बाद में अपन ने देखा जो पोर्शन शेडेड हुआ उसी का मिरर इमेज अनशेडेड था, जो अनशेडेड था उसी का मिरर इमेज इधर शेडेड था, फिर शेडेड उसका मिरर इमेज अनशेडेड एंड सो ऑन. उससे क्या हो गया? आधा सर्कल शेड हो गया, आधा बच गया. चलो नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम. दिस अगेन इज अ it will clear a concept for you. इस प्रॉब्लम को देखो, काफी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है. लुक एट इट एंड रीड इट वंस अगेन. क्या बोल रहा है? फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p such that the equation px square is equal to ln x has exactly one solution. जब भी exactly one solution वाली प्रॉब्लम्स आती है ना, and such problems are very common in JEE Advanced, तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं
टिपिकली क्या करना होता है, आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के ग्राफ को विजुअलाइज करके देखना होता है कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकता है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू ऑलवेज लुक एट LHS एंड RHS सेपरेट फंक्शंस, उनके ग्राफ को, their graph you have to visualize and see how many times do they intersect. They should intersect only once for one solution, and for what value of p will that happen is what we have to find out. p की किन वैल्यू के लिए ऐसा होगा वो अपने को फाइंड करना है. ठीक है भैया, देखो इसके ग्राफ तो अपने को सबको पता है, इसका ग्राफ सबको आता है, lnx स्टैंडर्ड ग्राफ. हाउ इज द ग्राफ? lnx का ग्राफ all of us know is like this. This is the graph of what? lnx. सबको आता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द ग्राफ ऑफ px स्क्वायर? वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस. सो px स्क्वायर का ग्राफ होता कैसा है? px स्क्वायर के ग्राफ भाई डिपेंड करेगा ना p की वैल्यू पे बाबा. तो px स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा, ये ग्राफ है किसका? y इक्वल टू px स्क्वायर. बट कब भैया? जब p पॉजिटिव होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर देखेगा. अगर आपका p 0 हो जाएगा तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू 0. कब? जब p 0 है. और आपका ग्राफ ये वाला हो जाएगा, दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू px स्क्वायर. भैया अगर तो आपका p नेगेटिव है, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज नेगेटिव, द ग्राफ इज लुकिंग डाउन. नाउ डू यू रियलाइज इसमें एक केस ऐसा है जब गारंटीड देयर इज वन सॉल्यूशन. व्हाट इज दैट केस? कैन समबडी टेल मी? देयर इज वन केस व्हेन देयर इज guaranteed one solution. Somebody y equal to 0, yes. Satyendra, one more. P equal to 0, yes. There is one more. When p is less than 0, देखो ना, अगर इस ग्राफ को यहां बनाता मैं, look at this case, y is equal to px square. अगर p less than 0 है, how many solutions do you see? भाई एक ही तो solution हो सकता है. This graph is going up, this graph is coming down. In the fourth quadrant only one solution is possible. इसका मतलब p greater than 0, तो guaranteed in this case only one solution is possible. इसका मतलब p less than 0 is part of the answer. p less than 0 is part of the answer. यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है. बट what if p equal to 0? तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. What if it is p equal to 0? Again no problem. If p is equal to 0, अगेन ओनली वन सोल्यूशन, अगेन ओनली वन सोल्यूशन. मतलब यहां तक तो मुझे क्लियर है कि p लेस देन इक्वल टू 0 अगर है, देन ओनली वन सोल्यूशन. यहां तक तो सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया. बट अगर p ग्रेटर देन 0 होगा तो भी तो एक केस है जब एक ही सोल्यूशन होगा. व्हेन p इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा बच्चों? सो लेट मी मेक, किस कलर से बनाऊं? ग्रीन से बनाता हूं. अगर p ग्रेटर देन 0 होगा तो एक ये वाला केस होगा ना ऐसा, दिस इज द केस व्हेन ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर, व्हेन y इज इक्वल टू px स्क्वायर एंड y इक्वल टू lnx ओनली टच ईच अदर, दे बोथ टच ईच अदर, तो एक ही सोल्यूशन होगा. मानते हो मेरी बात? ठीक है. जैसे कि सत्येंद्र ने बोला है टचिंग एट वन पॉइंट, तो देखो फॉर दीज केसेस p लेस देन इक्वल टू 0 तो आपका आंसर का पार्ट है. बट मुझे यहां पे आंसर निकालना है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच करें. सो व्हाट यू हैव टू सॉल्व इज, वो वैल्यू ऑफ p फाइंड करो जब p पॉजिटिव है और दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच करते हैं, व्हेन बोथ ग्राफ्स टच ईच अदर. नाउ दिस इज द प्रॉब्लम फॉर यू. सो व्हाट इज द केस बच्चों? दिस इज द केस यू हैव टू सॉल्व फॉर. चलो सॉल्व करो, आ जाओ. कौन सा केस? दिस इज y इक्वल टू lnx, दिस इज y इक्वल टू px स्क्वायर. बट दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच कर रहे हैं. y इज इक्वल टू px स्क्वायर. इन दिस केस p इज ग्रेटर देन 0. बोथ ग्राफ्स आर टचिंग ईच अदर. तो मान लो जहां पे टच करते हैं वो पॉइंट है, मान लो a है ना. तो एक पे मेरे ख्याल से क्या होगा, x1 और y1 बराबर, मतलब x1 y1 कोई पॉइंट है. जहां पे टच करते हैं तो क्या होगा, दोनों ग्राफ सेम कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे. मतलब x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा. सो कंडीशन नंबर 1, y1 इज इक्वल टू px1 स्क्वायर एंड y1 इज इक्वल टू lnx1. मानते हो मेरी बात? ये होगा. सेकंड, दोनों पे टेंजेंट सेम होगा. इन बोथ दीज केसेस टेंजेंट इज सेम, देयर इज सेम टेंजेंट फॉर बोथ.
same tangent for both. So dy by dx for both is same, dy by dx for both is same. इसका dy by dx कितना हो जाएगा, इसका d अब dy by dx कितना हो जाएगा आपका, इसका slope of tangent will be what, dy1 by dx1, मतलब slope of tangent in this case will be what, 2px1, और इस केस में कितना हो जाएगा, dy1 by dx1 वो कितना हो जाएगा 1 upon x1. बोथ आर सेम, बोथ शुड बी इक्वल टू सेम, ये दोनों सेम होने पड़ेंगे आपके. सो दिस इज इक्वल टू दिस. समझ में आ गया आपको? बस ये तो कंडीशन है. दिस इज कंडीशन नंबर 1, दिस इज कंडीशन नंबर 2. इन दोनों को सॉल्व करना है और आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है. कर लो फटाफट सॉल्व. क्या करेंगे, इन दोनों को देखो ध्यान से. इससे मेरे पास क्या आएगा, इससे आएगा मेरे पास x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2p. आ गया, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2p. इससे मेरे पास इसको लेता हूं और इसको लेता हूं, इसको और इसको लेता हूं, तो कितना आ जाएगा, x1 स्क्वायर को पुट कर दो इसके अंदर. ठीक है, तो y1 कितना आ जाएगा, सो y1 इज इक्वल टू p इंटू 1/2p. मतलब आपका y1 कितना आ गया, हाफ. y1 कितना आ गया, हाफ. y1 हाफ आ गया. ठीक है, y1 हाफ को इसमें डाल देता हूं, y1 हाफ को इसमें डाल दूं अगर, तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी. सो y1 इज हाफ इज इक्वल टू ln x1. तो इसका मतलब x1 कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा e की पावर हाफ. x1 आ गया e की पावर हाफ. बट मेरे को तो p चाहिए, मेरे को तो p चाहिए. ठीक है, तो p कहां से मिलेगा मेरे को, p कहां से मिलेगा, यहां से मिल जाएगा. नाउ यूज दिस वंस अगेन, इसको यूज कर लेते हैं. x1 स्क्वायर था 1/2p, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं. ठीक है, पुट कर दो. x1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर इज e इज इक्वल टू 1/2p. p कितना हो जाएगा 1/2e. दैट्स योर आंसर. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, p 1/2e. तो टोटल आंसर क्या हो गया, या तो p 1/2e होगा या फिर p लेस देन इक्वल टू 0 होगा. अगर p लेस देन इक्वल टू 0 है तो गारंटीड एक ही सोल्यूशन है. मतलब ये वाला केस और ये वाला केस गारंटीड वन सोल्यूशन. अगर p आपका ये वाला केस है तो ये केवल ये वाला केस कब पॉसिबल है, जब अपन ने कैलकुलेट किया. इस केस में p की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2e. सो व्हाट्स योर टोटल आंसर, p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 यूनियन 1/2e. सो आप आंसर कैसे लिखोगे बच्चों, सो आप आंसर लिखोगे इसका ऐसे. दिस इज हाउ यू विल राइट द आंसर. p बिलोंग्स टू सारी नेगेटिव वैल्यूज, 0 भी इंक्लूड हो सकता है, यूनियन 1/2e. समझ में आया कि नहीं आया बच्चों ये क्वेश्चन? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम, यस और नो? ठीक है, तो ये भी आपके जे एडवांस में आई विल से इट इज रिलेटिवली सिंपलर प्रॉब्लम बाय द वे. ठीक है, इसमें ये काफी कॉमन वैरायटी की प्रॉब्लम है. ठीक है, बट अगेन आज इससे आपने क्या सीखा, अगर आपको वन सोल्यूशन या एग्जैक्टली वन सोल्यूशन टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, LHS RHS को विजुलाइज करो, फाइंड द कंडीशन दैट उनके ग्राफ शुड इंटरसेक्ट ओनली वंस. ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव अहेड. अब ये बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है. इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम एंड आराम से गिव इट आराम से मिनट और 2, मेक अ डायग्राम, अंडरस्टैंड इट. हिंट इज zero calculation required for this problem. Zero calculation required for this problem. Look at this. Yes, we will do AOD problem as well, Shri Harsha. Look at this. In this problem, if you think correctly, zero calculation required. Now make the diagram of it. Take your time, आराम से. Line 4x plus 3y minus 12 equal to 0. कैसी लाइन है ये, सब लोग बनाओगे? x upon 3, y upon 4. Line is like this. Something like this, है ना? So this is 4x. This is the line L1 given to you. आराम से take your time. I'm just making the diagram as you guys. Now it intersects at A and B. Now, अब उसने क्या बोला? A variable line perpendicular to L1 intersects x and the y axis at P and Q. So there is a variable line
से यहां से विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो यहां से एक लाइन है, रुक जा भाई, it is perpendicular to the given line, it intersects x and the y axis at p and q, so this is p and this is q, तो ये क्वेश्चन तो ये है. Then the locus of the circumcenter of the triangle ABQ, so which triangle are we focusing on? ABQ, so this triangle, so this is the triangle that we are working on, this is the ABQ triangle. इसका आपको circumcenter चाहिए, you wanted circumcenter. My question is, anybody, can anybody give me the answer? It's verbal. How is it verbal? देखते हैं बच्चों. So what is, एक एक करके आगे बढ़ते हैं. Let's go ahead step by step. What is the perpendicular bisector? Sorry, what is the circumcenter? Circumcenter क्या होता है? ये होता है point of concurrence of perpendicular bisectors. है perpendicular bisectors? ठीक है. So perpendicular bisectors का point of concurrency. अब ये बताओ, there are 3 lines in this triangle. एक line तो ये रही, एक line ये रही और एक line ये रही. Which line is constant? Which line is variable? बाबा सी देखो, उसने क्या बोला था? A variable line perpendicular to L1. This blue line is perpendicular. तो ये blue line तो move करती रहेगी. This blue line will keep moving. कभी यहाँ पे आ जाएगी, कभी यहाँ पे आ जाएगी, कभी यहाँ पे आ जाएगी. This blue line will keep moving, right? So your Q point will keep moving. Q कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा. The Q will keep moving. But there is one line which is constant AB. In this triangle ABQ, AB remains constant. Now let us visualize कि circumcenter बनेगा कैसे? Circumcenter बनेगा if I make the perpendicular bisector. Say this is the perpendicular bisector of AB, then there will be a perpendicular bisector of BQ. So मान लो ये BQ का perpendicular bisector है. This is the perpendicular bisector of BQ. है perpendicular bisector BQ का. ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं? ये जहां पे मीट करेंगे, do you realize this is the circumcenter? है कि नहीं? जहां पे दो perpendicular bisector मीट कर जाएंगे, वही तो circumcenter होता है. Now will this yellow line change? No, yellow line will not change. It is perpendicular bisector of AB. But will this white line change? Yes, this white line will keep moving. अगर Q नीचे जाएगा तो ये white line भी नीचे जाएगी. अगर Q और नीचे जाएगा तो ये white line और नीचे जाएगी. ठीक है, और ऊपर जाएगा तो white line और ऊपर जाएगी. ठीक है, so this white line will keep moving as Q will keep moving. जैसे जैसे Q मूव होता जाएगा, जैसे जैसे Q मूव होता जाएगा, वैसे वैसे ये व्हाइट लाइन जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BQ का, वो मूव होता जाएगा. बट कितना भी मूव हो जाए, हाउसोएवर इट मूव्स, बाबा हर बार इंटरसेक्ट कहां करेगा? येलो लाइन पे ही करेगा. इट विल ऑलवेज इंटरसेक्ट ऑन द येलो लाइन. और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा येलो लाइन को, वही तो सर्कमसेंटर है. इसका मतलब लोकस ऑफ सर्कमसेंटर क्या होगा? येलो लाइन. दैट्स योर आंसर. सो दिस येलो लाइन जो है ना, अरे बाबा वही तो. सो दिस येलो लाइन इटसेल्फ इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट द लोकस ऑफ सर्कमसेंटर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लो, आंसर आ जाएगा. बहुत इजी है निकालना. ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ये पॉइंट है आपका 3,0, ये पॉइंट है आपका 0,4, मिड पॉइंट आ जाएगा. आपको स्लोप पता ही है, इक्वेशन निकाल लेना, आंसर आ गया. दैट्स इट. यस और नो? कितने बच्चों को समझ में आया? सो साहिल, यू आर राइट. एग्जैक्टली साहिल, परफेक्ट. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू थिंक, दिस इज हाउ यू थिंक. सो एक बार वापस से रिवाइज कराता हूं. मैंने यहाँ पे क्लीनर डायग्राम बना रखा है. तो उसने बोला था कि ये जो आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हमें सर्कमसेंटर चाहिए था. ठीक है, सर्कमसेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, सॉरी, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. ये जो लाइन है, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. ये तो चेंज नहीं हो रही, बट ये Q जो है, ये Q ऊपर नीचे मूव होता रहता है. ये Q ऊपर नीचे मूव हो रहा है, तो उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो भी ऊपर नीचे मूव होगा.
This is the perpendicular bisector. This is perpendicular bisector of BQ. ये चेंज हो रहा है, ये भाई साहब भी ऊपर नीचे मूव हो रहे हैं, बट जितना भी ऊपर नीचे मूव हो जाए उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन घूम फिर के इसी लाइन के ऊपर रहने वाला है। तो वही तो इसका मतलब सरकम सेंटर हमेशा इसी लाइन पे मूव करता रहेगा, और जिस लाइन पे सरकम सेंटर मूव करता रहेगा वही तो लोकस ऑफ सरकम सेंटर होता है। सो आंसर क्या है? इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो locus of the circumcenter is the perpendicular bisector of AB, which is nothing but 6x minus 8y plus 7, जो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया सबको बच्चों? ये आओ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा। दिस इज अ वेरी पॉपुलर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन का हमें डिसेक्शन करना पड़ता है। मतलब क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो हमेशा ही, बट कितने होंगे इसका हमें डिसेक्शन करना पड़ता है। मतलब हमें कांटा छाटी करके देखना पड़ता है बाबा हो क्या रहा है इसके साथ। ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन दे दी, उसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। एक चीज बताओ, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कितने हो सकते हैं? कोई मुझे बताएगा? अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है, इफ देयर इज अ क्यूबिक इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसके कितने रूट्स हो सकते हैं? तुम बोलोगे सर 3 रूट्स हो सकते हैं, बट ऑप्शंस क्या है? व्हाट आर द ऑप्शंस? क्या क्या हो सकते हैं? या तो कितने रियल और कितने इमेजिनरी होंगे? रियल इमेजिनरी कितने कितने हो सकते हैं? या तो तीनों रियल हो जाए, 3 रियल 0 इमेजिनरी। दूसरा ऑप्शन 1 रियल 2 इमेजिनरी। क्यों? बिकॉज इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर्स, ये सबको पता है ना। इमेजिनरी रूट्स always occur in conjugate pairs। सबको बताइए, अगर एक रूट होगा a प्लस आयोटा बी तो दूसरा रूट हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। ऑल ऑफ यू नो दिस, राइट? तो ये ऑप्शन हैं आपके पास। अब अपने वाले केस में उसने कहा 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अपने वाला केस में ये वाला केस होना चाहिए। कैसे करते हैं इनको सॉल्व? सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करो। स्टेप 1 डिफरेंशिएटेड। स्टेप 1 डिफरेंशिएट। क्या करते हैं? सबसे पहले इसको लो, एफ ऑफ एक्स है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस ए। स्टेप 1 सबसे पहले उठा के मार दो डिफरेंशिएट, 3x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब इसका एनालिसिस करो कि इसका जो ये आपका एफ डैश जो है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि दोनों है। ये तो दिख ही रहा है आपने को वेवी कर्व से। दिस इज नथिंग बट 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। आपको दिख रहा है कि एफ डैश एक्स कैसे बिहेव कर रहा है, ये अपन ने पढ़ा है बहुत डिटेल में। एफ डैश एक्स कैसे बिहेव कर रहा है? एफ डैश एक्स माइनस 1 1 आपको दिख रहा है वेवी कर्व की वजह से कैसा बिहेव करेगा बच्चों? ये एफ डैश यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, सबको पता है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बिहेव करता है? जहाँ पे एफ डैश नेगेटिव है वहाँ पे ग्राफ इंक्रीज करता है, जहाँ पे एफ डैश नेगेटिव है वहाँ पे ग्राफ डिक्रीज करता है, और जहाँ पे एफ डैश पॉजिटिव है वहाँ पे ग्राफ इंक्रीज करता है। मतलब आपको शेप मिल गई ग्राफ की। इसका मतलब अपने क्यूबिक ग्राफ की शेप कैसी होगी? सो यू कैन नाउ विजुअलाइज कि इन भाई साहब की शेप कैसी है। इसकी शेप है कुछ ऐसी। दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ। रेड में दिख रहा है, अलग कलर में ना। सो दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ। मैक्सिमा कहाँ पे है? यहाँ पे आएगा -1 पे मैक्सिमा। सो ये पॉइंट है आपका -1 कॉमा एफ ऑफ -1। यहाँ पे तो आपका मैक्सिमा है, और ये पॉइंट क्या है आपका 1। यहाँ पे आपका मिनिमा है, यहाँ पे आपका मिनिमा है। सो दिस पॉइंट इज 1 कॉमा एफ ऑफ 1। यहां तक तो हमें समझ में आ गया भाई साहब, यहां समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। ये अपने क्यूबिक इक्वेशन से ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस ए। अब उसने बोला भाई साहब इसको 3 रूट्स चाहिए डिस्टिंक्ट। अब तुम बोलोगे सर इसके तो हो सकता है एक ही रूट हो सकता है 3 रूट हो। कौन से केस में एक रूट होगा, कौन से केस में 3 रूट होंगे? अब देखो उसको ध्यान से समझते हैं अपन। जो अपना ग्राफ है ना, देखो ग्राफ कैसा कैसा हो सकता था। ग्राफ की शेप तो ऐसी है, ग्राफ की शेप ऐसी है, ठीक है। हो सकता था कि जो एक्स एक्सिस है वो ऐसे पास कर रहा हो सकता था
कि एक्स एक्सिस ऐसे पास कर रहा हो सकता था ऐसे, हो सकता था। अगर ऐसा केस होता तो बच्चों तुम क्या बोलते, वन रियल रूट। इस केस में तुम क्या बोल रहे हो, सर तीन रियल रूट। ये कौन सा केस है, थ्री रियल रूट। अब इसको याद रख लो बच्चों, जब भी ऐसा वाला केस बनाना हो उसका बहुत सिंपल तरीका होता है, भैया अगर ये वाला केस है इसका मतलब गारंटीड ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है, ये वाला पॉइंट नेगेटिव है, या फिर इसका और इसका साइन अपोजिट है। यहां पे वैल्यू कितनी है, यहां पे वैल्यू है एफ ऑफ -1, क्योंकि ये पॉइंट -1 पे था और ये कहां 1 पे था, यहां पे वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 1। अगर एक्स एक्सिस दोनों के बीच में से जा रहा है, इफ एक्स एक्सिस गोइंग बिटवीन, देन दिस एंड दिस डेफिनेटली शुड हैव अपोजिट साइंस। इन दोनों भाई साहब का साइन तो अपोजिट होगा, कर दो ना अपोजिट, कर दो अपोजिट। सो दिस इज द कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस केस, थ्री रियल रूट वाला केस क्या होगा बच्चों, दिस विल बी द कंडीशन। नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करोगे, व्हाट इज एफ ऑफ 1, 1 पुट कर देना ओरिजिनल इसमें, इस कर्व में 1 पुट कर देना एक बार, और एक बार इसके अंदर -1 पुट कर देना, मल्टीप्लाई करके लेस देन 0 कर देना, सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा दिस इज द कंडीशन फॉर थ्री रियल रूट्स। समझ में आया कि नहीं आया, ये सुनो, ठीक। स्टेप 1, व्हेनेवर देयर इज अ क्यूबिक इक्वेशन, इफ क्वेश्चन इज आस्किंग, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है थ्री रियल रूट्स, वन रियल रूट, स्टेप 1 डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करके देखो कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव है, वेयर पॉजिटिव वेयर नेगेटिव, एफ डैश की वैल्यू, राइट। सो यू विल गेट द शेप ऑफ द ग्राफ। शेप ऑफ द ग्राफ इज गोइंग अप, गोइंग डाउन, गोइंग अप, बिकॉज एफ डैश was changing its sign from positive, negative, positive. So there is a maxima, there is a minima. If three real roots, maxima multiplied by minima less than 0. Maximum value multiplied by minimum value less than 0. Got it? Now अब मैं इसकी थ्योरी आपको बता देता हूँ पूरी, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। क्या क्या केसेस पॉसिबल है बच्चों, देखो सारे केसेस देख लो एक बार, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, बट दिस इज प्रोबेबल फॉर जे एडवांस, इसीलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू वेरी सिंपल से सिंपल कंसेप्ट। क्या क्या केसेस पॉसिबल है, सो दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। केस नंबर 1, when you find out f dash x, you realize it is always positive or always negative. इसका मतलब d जो है आपका, the d, the discriminant of this quadratic. So when you differentiate, क्या मिलेगा आपको, you get a quadratic when you differentiate, right? Now what if this f dash x is, what if f dash x is greater than 0 always? कब होगा, जब ये d क्या होगा, when d is less than 0, when d is less than 0, and यहाँ पे 3 क्या है, पॉजिटिव है, 3 is greater than 0 we know already. So what is the case, the graph will always be an increasing graph. इसका मतलब f dash x greater than 0 always implies f of x is always increasing, increasing always. मतलब how is the graph, the graph will go like this, that's it. If the case is f dash x is less than 0 always, वो केस भी हो सकता है, कब होता, जब d less than 0 होता, when d is less than 0 and coefficient of x square is also less than 0. We have read this in quadratic equations, simple quadratic equation के रूल्स हैं ये। अगर f dash x less than 0 होता तो ग्राफ would have been, इसका मतलब f of x क्या हो जाता, decreasing always, so this would have been the graph. In these cases क्या होता, only one root. ये कौन से केसेस है बच्चों, only one root. Why only one root? Because x-axis now intersects only once. X-axis can intersect only once. तो ये केस कब आएगा, जब आपका d लेस देन 0 होगा। सो आपने क्वाड्रेटिक लिया, आपने क्यूबिक लिया, क्यूबिक को आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करते ही डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका लेस देन 0 आ गया तो गारंटीड क्यूबिक हैज वन रूट, देन गारंटीड क्यूबिक हैज ओनली वन रूट। नोट किया, नोट इट डाउन, ठीक है। मैंने थ्योरी पूरी लिख रखी है यहाँ पे, दिस आई हैव रिटन, ठीक है। दिस इज द केस, इफ d इज लेस देन 0, ठीक है, देन देयर इज ओनली वन रूट, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, क्लियर। सेकंड
सेकेंड केस जो अभी अपन ने किया, व्हाट वी जस्ट डिड, इफ वी डिफरेंशिएट दिस, ठीक है, बट d is greater than 0, but d is greater than 0. Now the case is when d is greater than 0, right? इसका मतलब क्या होगा? When d is greater than 0, then it has two roots, then this f dash x has two roots, has two roots, which is like f dash x कैसा हो जाएगा? It will be like x minus alpha into x minus beta types. तो f dash x क्या होगा? f dash x कभी पॉजिटिव भी होगा, कभी नेगेटिव भी होगा. It will be both. So the shape of the cubic graph will be like this. The shape of the cubic graph will be like this. This will be the shape of the cubic graph. Exactly जो अपन ने क्वेश्चन किया. It is exactly the question which we just did, right? So cubic equation, differentiation, differentiation का discriminant greater than 0. Now this is the shape of the cubic graph. This is the shape of the cubic graph. किसकी shape है ये? इस cubic graph की shape है. Now for it to have three distinct roots, कौन सी condition बताई बच्चों मैंने? So this is the condition which we just did. So this is the condition which we just did. तो जो roots आएंगे आपके, so f dash x equal to 0, okay, there will be two roots, x1 and x2. One will give you maxima, one will give you minima. If the product of f of x1 into f of x2, this multiplied by this, if it is less than 0, then guaranteed 3 real roots. Guaranteed 3 real roots. Otherwise, there will be only 1 real root. If it is not less than 0, their product, then there will only be 1 real root as I have depicted here. इसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज करोगे. If this is the case, then only 1 real root. If that is the case, there are 3 distinct real roots. Very important for J Advanced. Very important for J Advanced. All right. So इसको एक बार रिवाइज करना. I'm sure I'm going a bit fast. ठीक है. In the interest of time. But if you're interested in this, pause the lecture. Go through it once again. अगर आपको इंटरेस्ट है इसको समझने में, तो लेक्चर को पॉज करना, वापस से पीछे जाके एक बार वापस से चला के देखना, पॉज कर करके रुक रुक के ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैंने एक बार आपको बताया. ऑलराइट, चलो नाउ लेट्स मूव टू वन वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. लुक एट दिस. अगेन इट्स अ ग्राफिकल प्रॉब्लम, मतलब ग्राफिकल विजुअलाइजेशन, ऑलमोस्ट नो कैलकुलेशन, ऑलमोस्ट नो कैलकुलेशन. Let f of r be r is a differential function such that f of a is equal to f of b equal to 0. Try to visualize it graphically. थोड़ा सा graphically visualize करने की कोशिश करो. Try to visualize it. So f of a, f of b both 0 है, right? So इसका मतलब I can do a few things, but you try to do on your own. F of a and f of b. So this is x is equal to a. This is x is equal to b. I am sure graph is passing through x-axis at a and b because f of a, f of b 0. यहाँ तक सबको clear है. Now, what does this tell you? f dash a into f dash b greater than 0. इससे क्या समझ में आता है? Implies, what does this tell you? f dash a and f dash b have same sign. Have same sign. Does this tell you this? दोनों का साइन सेम है. अज्यूम कर लो दोनों का साइन पॉजिटिव है. अज्यूम बोथ आर पॉजिटिव. से फॉर एग्जांपल f dash a b पॉजिटिव है, f dash a पॉजिटिव and f dash b is also positive. What does this tell you? Now if you visualize it graphically, what does this tell you? कि f of a पे ग्राफ इज 0, f of b पे ग्राफ इज 0, but this tells me कि at a the graph was increasing. What does this tell you? At a the graph was increasing. The graph has a tendency to go up. And what does this tell you? F dash b greater than 0. It tells you that at b graph again has a tendency to go up. So graph again has a tendency to go up. So this is the information that I have. This is the information that I have. Now the question is, a is less than b, okay? Then the minimum number of roots of f dash x in the interval a to b. f dash x equal to 0 कितनी बार होगा? How many times will f dash x be equal to 0? Can somebody tell me? Anybody?
It's simple visualization, common sense. Ayush says 3, Sahil says 1. Minimum, Baba, minimum. Sahil, no. अच्छा, try to complete the graph. कैसे होगा? Can you try to complete the graph, बच्चों? It's a differentiable function. Differentiable function मतलब it's a continuous function as well. If it is a continuous function बच्चों, continuous भी है. मुझे इस ग्राफ को अगर ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन कर सकता हूं? खुद सोच के बताओ. तुम बोलोगे सर ऐसे ज्वाइन कर लो ना, इसको ऊपर जाएगा, इट विल गो अप. नाउ if I have to join these, then it has to come down once, at least it has to come down once. Yes, or you can say sir it can come down many times as well. So this is A, this is B, going up. Now if I try to join it, sir you can do it like this also, tu. Yes, this is also fine. But what is the minimum? उसने क्या बोला? Minimum. So this is the at least once it was going up. आप पहाड़ पे चढ़ रहे थे. You are climbing a hill here. You are also climbing a hill here. It means you definitely must have come down once and then gone up. Obviously. Now, so this is the minimum case. This is the minimum. At least this is what you have to do. Now, if this is the case, तो बाबा ये बताओ मुझे f dash x. Think about, ये किसका ग्राफ है? This is the graph of y equal to fx. What is the case here बच्चों? This is the maxima, this is the minima. यहां पे क्या होगा? At this point f dash x क्या होगा? Say this point is x1, say this point is x2. What is f dash here? 0. What is f dash here? 0. So how many times is f dash becoming 0? Minimum number of times f dash is becoming 0. कित बताओ f dash कितनी बार 0 हो रहा है? कम से कम कितनी बार 0 हो रहा है f dash? Two times. Yes, of course, that's your answer. So answer is B. भैया कम से कम 2 बार तो 0 होगा ना, at least 2 times तो it will become 0. और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? और more than, yes, more than तो हो ही सकता है. For example, in this case 1 2 3 4. In this case f dash, how many roots are there for f dash? 4. How many roots are there here for f dash? 2, right? f dash की बात हो रही है, not f of x. Remember, we are talking about f dash, not f x. We are talking about f dash x. ठीक है? Got it? So this is again a very beautiful problem where you just simply visualize the information that is given. जो भी आपको information दी है ना, आप उसको बस visualize कर रहे हो. तो ऐसी problems JEE एडवांस में काफी पॉपुलर है. ये हो सकता है कि पूरी प्रॉब्लम ना हो सकता है प्रॉब्लम के बीच का हो. इट कैन बी वन पार्ट ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम एज वेल, राइट? ठीक है, तो चलो, तो ये आपका आंसर हो गया. दिस इज व्हाट वी हैव जस्ट विजुअलाइज्ड. नाउ लेट्स डू ये अगेन a visualization problem. Come, do this. S1 is equal to this. There are two circles. एक circle ये रहा, another circle is this one. Then total number of possible tangents to S1 which upon reflection to mirror y minus x equal to 0 is also tangent to S2. Okay, whatever. पहले just visualize these two circles. Step 1, visualize these two circles. फर्स्ट विजुअलाइज दीज टू सर्कल्स, उसके बाद में वी विल टॉक लेटर, उसके बाद में बाकी बातें बाद में. पहले भाई साहब दोनों सर्कल तो बनाओ. सर्कल का सेंटर तो दिख रहा है मेरे को. -2 2, ये तो सबको रटा हुआ है. -2, 2 इज द सेंटर ऑफ पहला सर्कल, है ना. सेकंड सर्कल का सेंटर क्या है? -2 और y कितना? दिस इज 3, है ना. एंड व्हाट इज द रेडियस? आई एम नॉट कैलकुलेटिंग दिस, तो आप सबको आता है. दिस यू कैन कैलकुलेट ऑल ऑफ यू. फाइंड आउट r1 एंड टेल मी द r2. इसका r2 कितना भाई? व्हाट इज r1?
So lot of students are giving me answer B, C. You will be surprised at the answer. You will be surprised at the answer. The answer will be shocking. So that's the hint. Answer is shocking. आंसर देख के बहुत मजा आएगा बच्चों. पहले तुम देखो, मेरे को रेडियस तो बताओ बाबा. रेडियस इज 1, R1 इज 1, R2 कितना आ रहा है? Infinite, okay. R2 is √3, Sahil, okay. R2 is √3, correct. R2 is √3. So I can visualize these circles, right? -2 तो same है, तो ऐसा होगा circle ना कुछ. So the circle will be like this, right? One is, next page बनाता हूँ, look cleaner. So one circle is -2, -2, -2, -2. So -2, 2, यहाँ पे radius is 1, so circle is probably like this. Circle is like this. Then another circle, -2, 3 somewhere. So here, and the radius तो ये हो गया, और the radius is √3, तो कुछ ऐसा जाएगा, right? Something like this. So these are the two circles. Agree? These are the two circles, and they are in the second quadrant. Both the circles are in second quadrant. Now the question is, उसने बोला कि यहाँ पे एक line है, there is a line y equal to x which is acting like a mirror. ये भाई साहब mirror है. It is a mirror. Question is that if a tangent from one circle, ठीक है, reflects upon y equal to x, this is y equal to x, as mirror, then it again becomes the tangent to the other circle. तो ऐसा कितनी बार हो सकता है? How many times can it happen? So यहाँ से एक tangent आया, reflect हुआ, और जाके दूसरे वाले circle से tangent बन गया. How many times can it happen? Answer is 0. How 0? देखो, very interesting observation. इन दोनों के जो सेंटर है ना, सेम लाइन में, ये सेम लाइन में, ठीक है. चलो एक ऑब्जर्वेशन है ये अपना. अच्छा ये बताओ, द बाउंड्री केस, सबसे बाउंड्री वाला टेंजेंट कौन सा हो सकता है जो यहां से बनेगा? अ लाइन. सो दिस इज द एक्सट्रीम सर्कल दैट कैन बी, दिस कैन बी द एक्सट्रीम सर्कल दैट कैन बी. बिल्कुल बिल्कुल इसके बाउंड्री के ऊपर, उसके आगे तो टेंजेंट हो ही नहीं सकता. बियॉन्ड दिस देयर कैन बी नो टेंजेंट विच कैन गेट रिफ्लेक्टेड टू द अदर वन, ठीक है. But let's visualize this tangent. So let us visualize this tangent. So यहाँ से जो tangent होगा, it will be a horizontal line. It will be a horizontal line. Agree? It will be a horizontal line. Now let's see when it reflects, where it goes. When it reflects, where it goes. कोई मुझे बताएगा कहाँ जाएगा ये? So ये क्या है? This is the perpendicular, right? So कोई मुझे बताएगा what is this angle? Can you tell me this angle? Angle of incidence. What is the angle of incidence here? This angle. How much is this angle? Because this is y equal to x. ये angle कितना है? This angle is 45 degree. And ये line horizontal. This line also horizontal. So this angle should be what? 45 degree. Of course. Now then of course here the angle of reflection should be how much? What? Angle of reflection should be how much? This should also be 45 degree. कहाँ चला गया? This should also be 45 degree. This should also be 45 degree. 45, 45, 90 degree. तो ये लाइन थी हॉरिजॉन्टल, दिस लाइन वॉज हॉरिजॉन्टल. भाई साहब रिफ्लेक्ट होके जो लाइन चली गई वो हो गई वर्टिकल. सो ये लाइन जो टेंजेंट थी रिफ्लेक्ट होके भाई साहब वर्टिकल चली गई, वो तो इट वेंट वर्टिकल. देयर इज नो चांस इट कैन बिकम अ टेंजेंट टू दिस वन. नाउ व्हाट कैन बी द अदर टेंजेंट्स? अदर टेंजेंट्स कैन बी, अदर टेंजेंट कैन बी, इफ दिस इज द टेंजेंट, अदर टेंजेंट क्या होगा? अनदर टेंजेंट विल कम फ्रॉम हियर, समवेयर हियर. तो वो जब टकराएगी, व्हेन इट इंटरसेक्ट्स, then it will to go more further away. It will to go more further away. So actually there is no tangent from this one which can actually go to the
द ब्लू वन, कोई जा ही नहीं रही. देयर इज, क्योंकि भैया ये एक्सट्रीम वाली परपेंडिकुलर हो गई, उसके बाद जितनी भी बनेंगी वो तो और भी दूर जाएंगे, दे विल फर्दर स्कैटर अवे. ठीक है, यू कैन डू द सेम थिंग हियर. यहां से जो केस आएगा, यहां से जो केस आएगा वो वर्टिकल भाग जाएगा. मेक सेंस? नाउ थिंक अबाउट इट. सोचना इसके ऊपर, गिव इट सम मोर टाइम टू थिंक. फॉर एग्जाम्पल आयुष इज सेइंग समथिंग, थिंक अबाउट इट. जो आयुष बोल रहा है ना, सौरभ एंड आयुष, यू थिंक. आई एम जस्ट गिविंग यू अ वे ऑफ थिंकिंग हियर, बट नाउ यू गो हेड एंड फर्दर डिटेल इट आउट. ठीक है, करो ट्राई. साहिल, आयुष, ऑल ऑफ यू गाइस, ट्राई इट. बट अगेन सी, माई पॉइंट ऑफ गिविंग यू सच प्रॉब्लम्स इज आई वांट टू ट्रिगर योर ब्रेन. कल के एग्जाम के लिए, तो आपका, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओपन अप योर ब्रेन टू थिंक स्लाइटली डिफरेंटली. देखो फॉर्मूला वगैरह लगा के तो तुम क्वेश्चंस कर लोगे, जो होने होंगे हो जाएंगे, बट इफ योर ब्रेन इज ओपन टू दिस वे ऑफ थिंकिंग, प्रोबेबली यू कैन अप्रोच maybe 1 or 2 extra problems, is my whole idea of today's class. ठीक है, क्लियर है बच्चों? Now let's do, the answer is 0. Now let's do one more problem. So this is a very interesting problem where I will teach you one simple concept of, you know, इसमें एक use होगा concept of maxima and या फिर concept of inequalities of, let me write it this way, concept of inequalities of integration. तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो, you read the question, very simple concept. I'll take 5 minutes to tell you. So concept of inequalities of definite integration. इसका एप्लीकेशन है. इन दिस प्रॉब्लम देयर विल बी एन एप्लीकेशन ऑफ दिस. कैसे एप्लीकेशन है वी विल सी. अगेन द प्रॉब्लम इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स. सो जब भी प्रॉब्लम रूट्स की होती है तो हाउ, व्हाट डिड आई टेल यू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था. हम अप्रोच कैसे करते हैं, हम अप्रोच करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली देख के. सो हम इसको सेपरेटली देखेंगे और हम इसको सेपरेटली देखेंगे. लेट अस सी बोथ ऑफ दीज सेपरेटली. दिस इज वेरी इजी टू विजुअलाइज. This is easy to visualize, yes or no? So this is, so all of you can visualize. What is this graph? This graph is y is equal to 2x minus 1. You will say, sir, this I know. Of course you know. So what is this graph? All of you know this graph is 2x, 2 is the slope, minus 1 se aayega, will come from minus 1 with the 2 slope will go like this. So this is the line. So this is y equal to 2x minus 1. You have to study between 0 to 1. So 0, and what is the value at 1? 1 पे 2 minus 1 is 1, right? So at 1 क्या हो जाएगा? 1 पे कितना होगा ये? 1 पे it will be 1. Clear? So this is y equal to 2x minus 1. Now let us try to visualize this one, other one. करते हैं इसको visualize. So let's look at this one. So let me say this is f of x. Let's say this is f of x. ठीक है? अच्छा, अब f of x अभी आपको दिख रहा है. जैसे ही आप इस तरह की चीज को देखते हो, do you realize you can apply what? क्या अप्लाई कर सकते हो? Leibniz formula, all of you know. You can apply Leibniz formula, right? सबको Leibniz formula आता है. I will not revise it, but formula is written here. If you want, take a screenshot, revise it, but you can apply Leibniz formula here to do the differentiation. So what you can do, first I know f of x is equal to, I know f of x is equal to 0 to x t square upon 1 plus t की power 4 dt. So I clearly know कि f dash x कितना हो जाएगा बच्चों? f dash x क्या होता है? You know how to do it? First put the upper limit in the value of t. Put the upper limit in the value of t. So कितना हो जाएगा? x square upon 1 plus x की power 4 multiplied by differentiation of upper limit. Upper limit का differentiation is 1 minus put lower limit in the value of t into differentiation of lower limit. सब 0 हो जाएगा. So minus 0. So basically what you got,
you got f dash x is equal to x square upon 1 plus x4. This I got. इससे मुझे क्या समझ में आ गया? I got to know ये पूरी चीज पॉजिटिव है कि नहीं है? Do you realize this entire thing is positive? f dash x is x square 1 plus x4. It is all positive. ये तो पॉजिटिव है, तो मुझे यहां से क्या समझ में आया? This implies कि ये जो भी फंक्शन है ना f of x is equal to this. It is an increasing function. मुझे ये तो समझ में आ गया. It is increasing function. I know this till now. I'm only looking at the left hand side till now. I'm looking at the left hand side. So left hand side मुझे क्या समझ में आ गया? ये एक increasing function है और कुछ समझ में नहीं आया मेरे को अभी तक. So let's go a step further. तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा ये वाला जो था, ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. दिस इज इंक्रीजिंग, बट लेट मी ऑल्सो ट्राई टू सी बिटवीन 0 to 1. मुझे तो 0 से 1 के बीच में बिहेवियर चेक करना है. सो कैन आई फाइंड आउट f of 0? व्हाट इज f of 0? आप बोलोगे सर जहां पे x दिख रहा है पुट x इक्वल टू 0. wherever you see x put equal to 0. so what is f of 0? सर 0 to 0, ये 0 कर दिया आपने, t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t4. बच्चों when you integrate something from same to same, जब भी आप किसी चीज को लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रखते हो तो वो इंटीग्रेट होकर 0 हो जाता है. आप आगे नहीं बढ़ रहे, ए से लेके ए तक जा रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहा, तो एरिया कितना आएगा? 0 आएगा. सो किसी चीज को 0 से 0 तक इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा? इट हैज टू बी 0. इफ यू इंटीग्रेट एनीथिंग फ्रॉम 0 to 0 इट विल बी 0. इफ यू इंटीग्रेट एनीथिंग फ्रॉम a to a 0, सेम टू सेम 0, राइट. f of 0 तो 0 आ गया. नाउ f of 1 बोलोगे सर 0 से लेके 1 तक जाओ, 0 से लेके गो टिल 1 है ना, क्योंकि आपने 1 कर दिया, इंटू टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t4. तो यार मुझे इतना तो समझ में आ गया, f of 0 तो 0 है, दिस आई नो. f of 0 is 0. अब मेरे पास 2 इंफॉर्मेशन है, f of 0 0 और इंक्रीजिंग. इसका मतलब इफ आई हैव टू प्लॉट द ग्राफ, हाउ विल द ग्राफ लुक लाइक? आप बोलोगे सर ग्राफ जो है ना कुछ ऐसा दिखेगा कि अब मैं ग्राफ किसका बना रहा हूं बच्चों? आई एम मेकिंग द ग्राफ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. आप बोल रहे हो सर 0 पे तो 0 है, 0 पे तो 0 है, इट इज 0 एट 0, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. बट मुझे नहीं पता कि f of 1 कितना है. हो सकता है ग्राफ ऐसा हो, द ग्राफ प्रोबेबली इज लाइक दिस, ग्राफ प्रोबेबली इज लाइक दिस. आई डोंट नो इफ द ग्राफ इज लाइक दिस और लाइक दिस. अगर तो ग्राफ ऐसा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का इंटरसेक्शन इज नथिंग, नो रियल रूट. अगर ग्राफ ऐसा होगा सो लेफ्ट हैंड साइड ब्लू एंड दिस ऑरेंज इंटरसेक्शन होगा, बट मुझे पता ही नहीं, आई डोंट नो. इसका मतलब पूरी प्रॉब्लम किसको फाइंड करने की है? भाई साहब मुझे बता दो f of 1 कितना आएगा, यहां पे आएगा कि यहां पे आएगा? f of 1 मुझे इसकी वैल्यू बता दो यार, समझ में आया? बट इसकी वैल्यू निकालूं कैसे? इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा, नीचे t4 है ऊपर t स्क्वायर है, इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा है. अब अपन एक लगाएंगे जुगाड़. नाउ वी विल अप्लाई वन मेथड एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. ठीक है, सो हाउ विल दैट मेथड वर्क? यहां तक समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम टिल नाउ? यस और नो? जल्दी से यस और नो. टिल हियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? स्टोरी समझ में आ रहा है? कैन यू फॉलो द स्टोरी? साहिल ने जो बोला विच इज करेक्ट. हाउ इज साहिल रीचिंग देयर? लेट अस सी. नाउ व्हाट डिड आई डू? मैं क्या करता हूं, लेट अस ऑब्जर्व. सो दिस इज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दिस इज आई वांट टू फाइंड आउट, this is I want to find out. So what do? We start by looking at what is written inside the integral. Do you realize it is positive? Do you realize it is positive? Yes or no? Of course positive. ये positive, ये भी positive, everything is positive. Do you realize it is less than 1? Do you realize it is less than 1? Why? By denominator is 1 plus something. So denominator is definitely greater than the numerator. It is 1 plus something. It is what? A fractional number. Between 0 to 1 ये क्या है? Fraction का square is a fraction. So fraction upon 1 plus fraction is less than 1. So ये fraction है और ये 1 point something है. So fraction upon 1 point something is less than 1. Clear? अगर ये true है ना बच्चों, if this you understand, then what you do is this is very important step.
सो अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता होती है ऑफ व्हाट इज रिटन इनसाइड द इंटीग्रल, रिमेंबर इंटीग्रेशन फॉलोज द सेम साइन. Integration follows the same sign. You can do the integration all across, it follows the same sign. Okay, clear? So because it lies between 0 to 1, so integration of that will also lie between the integration of this and this between 0 to 1. समझ में आया? So this is the inequalities of integers. Very simple. इतना ही है. उससे क्या होगा? ये तो 0 हो गया. This is nothing but 0. This is nothing but 0. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट 1. सो आपने देखा ये चीज कितनी आ गई, दिस इज लेस देन 1. सो दिस इज लेस देन 1 आ गया. बस अपनी प्रॉब्लम सॉल्व. सो हाउ इज अवर प्रॉब्लम सॉल्व? कैसे? बिकॉज इफ इट इज लेस देन 1, सो विच इज द केस? दिस इज द करेक्ट केस, बिकॉज f of 1 is coming out to be less than 1. So this is the case. So it intersects at one point. So there is one unique solution. There is one unique solution. Shreya says we can easily integrate that function. कर लो if you can. ठीक है, got it? समझ में आया? So this is not the case. This is the case. Hence you have one unique solution. Where is the solution? This is the solution. Clear? So this is how you think. Did I make sense बच्चों? बच्चों समझ में आया आपको ये सोचने का तरीका? इसकी थ्योरी मैंने आपको लिख दी. If you want, this is what we just did. This is what we just did. ठीक है, हमने क्या किया है कि अगर आपका f of x जो है, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू m है, मिनिमम वैल्यू इज m, देन यू इंटीग्रेट बिटवीन सम a to b, जहां से जहां तक इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन ऑफ m बिटवीन a to b इज नथिंग बट m into b minus a, and this will be small m into b minus a. This is the result that I've used. Clear? ठीक है, with what is written here. All right? ठीक है, चलो एक लास्ट कंसेप्ट करते हैं. लास्ट दिस बिफोर दिस प्रॉब्लम, राइट, लेट मी टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग. देखो, अगर आपको उसको डिटेल में करना है ना, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट हैड टेकन लास्ट ईयर. सो ऑन बाय, दिस इज अ JEE एडवांस प्रॉब्लम, बट दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बट इट लुक्स सुपर डिफिकल्ट. इसको देख के मतलब नानी याद आ जाती है. इसको देख के मतलब हालत ही नहीं है सॉल्व करने की. बट अगर मैं आपको बताऊं ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम्स है. इफ आई टेल यू दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम्स, इफ यू नो सम रिजल्ट्स, तो मैं आपको रिजल्ट चुपचाप फटाफट बता रहा हूं. एंड दिस प्रॉब्लम विल बिकम अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम फॉर यू. If you want to see such more problems, just search for binomial coefficient, extreme level up, JEE Advanced, Pulkit sir. I have also given the link of my previous session where you can do such more problems in detail. But मैं आपको quickly results बता रहा हूँ. This is JEE Advanced 2019 problem और ऐसी बहुत सारी problems आई हैं. Ready? Are you ready to learn this very quickly? This is just a formula based problem. Just a formula based problem. All right, इसको नोट कर लो एक बार क्विकली. जस्ट नोट इट डाउन, जस्ट नोट इट डाउन, एंड देन आई विल टेल यू वेरी क्विकली. जस्ट नोट इट डाउन. Noted? नहीं तो पॉज कर लेना स्क्रीन एंड नोट इट डाउन. नाउ, एंड सिमिलरली वन प्रॉब्लम आई एम गिविंग यू एज होम असाइनमेंट. सो दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच आई एम गिविंग यू एज होम असाइनमेंट. इसका सोल्यूशन मैंने डिटेल में दे दिया है. इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा इन दिस इफ यू वांट, बट दैट इज योर होम असाइनमेंट. ठीक है, अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, मतलब नॉट दैट सिंपल, बट इफ आई टेल यू द रिजल्ट्स इट विल बिकम सिंपल. अगर मैं आपको रिजल्ट्स बता दूंगा तो सिंपल बन जाएगी. ठीक है, बट आते हैं चलो कुछ रिजल्ट्स के ऊपर. क्विकली बच्चों नोट करवाओ कॉपी में, जस्ट नोट कर लो, क्योंकि कल एग्जाम में ये वाले रिजल्ट्स शायद आपके काम आ सकते हैं अगर आपने बायनोमियल थोड़ा सा पढ़ रखा है तो. इफ यू आर फेमिलियर विद बायनोमियल, देन जस्ट रिफ्रेश ऑफ दीज रिजल्ट्स विल गिव यू अ क्विक बेनिफिट. क्या क्या रिजल्ट्स है बच्चों? सिग्मा NCR सबको पता है 2 की पावर n होता है. ठीक है, एक बार मैं रिजल्ट दिखाता हूं कहां से आया. याद है 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन ये होता है. ऑल ऑफ यू नो द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n. इफ यू पुट x = 1 इन दैट,
तो क्या हो जाएगा C0 प्लस C1 प्लस C2 ब्ला 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 टिल Cn कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर n 2 रेस्ट पावर n. सो दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1. सो दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1. ठीक है, ये तो कर लिया अपन ने. नाउ द सेकेंड थिंग, what do you do? Just quick refresh. Okay, this is a quick refresh. Now if I differentiate this, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या हो जाएगा C0 गया C1 2C2 x n Cn x की पावर n माइनस 1. लेफ्ट हैंड साइड n 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ पुट x इज इक्वल टू 1. नाउ पुट x इज इक्वल टू 1. अब क्या किया आपने, नाउ पुट x इज इक्वल टू 1. तो क्या हो गया C1 plus 2C2 plus 3C3 plus NCN, that is sigma R NCR is put x is equal to 1 2n की power n into 2 raised to power n minus 1. Second result. Now you keep doing it. Now again if you multiply this by x and then differentiate again and then put x is equal to 1, तो आपके पास सेकंड रिजल्ट आ जाएगा विच यू जस्ट रिमेंबर सिग्मा आर स्क्वायर एनसीआर विल बी दैट वन. सो दीज आर योर 3 रिजल्ट्स एंड दिस इज हाउ यू रीच हियर. यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड रिवाइज इट. ठीक है, तो ये मैं आपको जस्ट क्विकली डेरिवेशन दिखा रहा हूं. यू मे नॉट रिक्वायर डेरिवेशन. ठीक है, जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट्स. व्हाट आर द रिजल्ट्स? वंस अगेन दीज आर द रिजल्ट्स बच्चों. These are the results, just note them down. Result number 1, ठीक है. Result number 2, how do you remember? n into 2 की पावर n minus 1. जब r स्क्वायर हो जाएगा तो n into 2 raised to power n minus 1 प्लस एक n into n minus 1 एक्स्ट्रा आ गया और 2 की पावर n minus 2. If you can also remember this can also be remembered as, if I take n into 2 raised to power n minus 2 common, it will become 1 plus ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, हाँ 2 प्लस n माइनस 1. दैट इज, इसको एक और तरीका याद रखने का, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 2. इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एक ही बात. ठीक है, नाउ ये आ गए आपके रिजल्ट्स. दिस सेकंड, दिस इज थर्ड, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ठीक, यहां तक कर लो. ओके, सो दीज 2 रिजल्ट्स आर डन. नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रॉब्लम. वन मोर रिजल्ट, ये आता है इंटीग्रेशन से. थर्ड रिजल्ट अगर आपने पढ़ रखा है तो बता रहा हूं, सिग्मा एन सी आर अपॉन आर प्लस 1. ये कैसे आता है? बाय इंटीग्रेटिंग. एक्सपेंशन को इंटीग्रेट कर दो ऑन बोथ द साइड्स, पुट x इज इक्वल टू 1, यू गेट दिस रिजल्ट. आई हैव डिराइव्ड इट फॉर यू, वन सिंगल स्टेप डेरिवेशन. रिमेंबर दिस एज वेल. सिग्मा NCR upon R plus 1 is this. How many of you remembered this? How many of you remembered this? किस किस को याद था? ये किसी को याद था कि नहीं था? अब इस प्रॉब्लम को देखोगे ना तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं. ये प्रॉब्लम पूरी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की है. चलो श्रीहर्षा, नोट इट डाउन राइट नाउ. नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम. अब ये आप नोट कर लेना, स्क्रीन को पॉज करके. यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड नोट देम डाउन. बट लेट्स कम बैक टू द प्रॉब्लम एंड यू रियलाइज इन दिस एवरीथिंग इज अ रिजल्ट. एवरीथिंग इज अ रिजल्ट. कैसे? लेट्स लुक एट दिस. ये सिग्मा, एक एक करके लिखते जाओ. सिग्मा के, आई एम जस्ट राइटिंग ऑल द टर्म्स वन बाय वन. ये रही ऑल द टर्म्स वन बाय वन. व्हाट इज सिग्मा के? सबको पता है. दिस इज 1 plus 2 plus 3 till n. All of you know n into n plus 1 by 2. Sigma nck k square we just did. क्या था वो? n into 2 raised to power n minus 1 plus n into n minus 1 2 raised to power n minus 2. Another way to remember it is n into n plus 1 into 2 raised to power n minus 2. Second result, nck into k, n into 2 raised to power n minus 1. What is this? nck 3 की पावर k. Slightly tricky. ये क्या होता है? बहुत सिंपल है बट ये, अरे तुम 3 से मत घबराओ. एक्चुअली इमेजिन दिस, फॉर दिस वन जस्ट इमेजिन दिस एज, अगर मैं आपको बोलूं
इसकी जगह अगर मैं आपको बोलता सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n c k x रेज टू पावर k। अरे x को बाद में रख देंगे ना 3, x को 3 बाद में रख देंगे, विल पुट 3 लेटर ऑन। बट दिस तो यू नो व्हाट इज एन सी के एक्स की पावर के, अरे बायनोमियल का एक्सपेंशन रे बाबा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इट इज एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस 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 एन सी एन एक्स की पावर एन। अरे सर ये तो बायनोमियल एक्सपेंशन है, इट इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स की पावर एन है। सो बेसिकली जो लिखा ही है इट इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स की पावर एन। हाँ एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 3 है ना। इन दिस इफ यू पुट एक्स इज इक्वल टू 3 यू विल गेट दिस, बाद में पुट कर देंगे। सो इफ यू पुट एक्स इज इक्वल टू 3 इन दिस कितना हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस कितना हो जाएगा 4 रेज टू पावर एन, एज सिंपल एज दैट। सो लास्ट वन इज 4 रेज टू पावर एन, डन, all are done. So in the entire matrix you know all the values, in the entire matrix you know all the values, ठीक है। इसको एक बार वापस से देखना, it's very interesting. So you know all the values, so just put in all the values. I have just put all the values here, ये रही सारी values, see this and this, I have put all the values, solve कर लेना इसको। determinant all of you know how to solve, I am not going to solve it, once you solve आपके पास आ जाएगा n is equal to 4, n is equal to 4 आ जाएगा। बट द प्रॉब्लम वॉज, सो प्रॉब्लम वॉज दिस, आपको फाइंड ये करना था, दिस इज अगेन अ रिजल्ट, ये वो इंटीग्रेशन वाला रिजल्ट। व्हाट इज दिस, कितना था इसका रिजल्ट 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। आपका इससे कितना आया था सॉल्व करके, इससे आपके पास आ गया था n इज इक्वल टू 4, पुट n इज इक्वल टू 4 हियर, यू विल गेट द आंसर। ऑल रिजल्ट्स आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 31/5, यू विल गेट 31/5, ठीक है। सिम बस ये। सो व्हाई आई गेव यू दिस प्रॉब्लम, जस्ट टू टेल यू दैट सम प्रॉब्लम्स लुक वेरी वेरी डिफिकल्ट बट दे आर एक्चुअली वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड। ये केवल रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये जो मैंने रिजल्ट बताए उतने रिजल्ट दिमाग में रख लो बस, जस्ट कीप दीज रिजल्ट्स इन योर माइंड, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। ऑलराइट, क्लियर। सो इफ यू न्यू द रिजल्ट, वॉज दिस अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अगर आपको रिजल्ट पता होते तो क्या प्रॉब्लम डिफिकल्ट थी, डुएबल थी, तो डुएबल थी। बट अगर आपको रिजल्ट नहीं पता थे तो मर जाते अपन, देन यू वुड हैव, मर क्या जाते, मतलब फिर मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा, आई वुडंट हैव टच्ड इट, तो इसको देखते ही छोड़ देते, मरना है क्या, भाग यहाँ से, ठीक है। गॉट इट। नाउ ऐसी एक और प्रॉब्लम है जिसके अंदर ये वाला रिजल्ट काम में आएगा, which is the other one, but this is your home assignment, this is your home assignment, ठीक है। इसका solution आपको कहाँ मिलेगा, I have written the entire solution, so you can watch this video as well, but I have given you the entire solution as well in detail, मैंने पूरा solution आपको डिटेल में इसमें पूरा समझा के दिया हुआ है। alright, and if you understand this problem will you do this as home assignment as well, एक क्विकली क्लास के बाद, ये वाली बहुत सिंपल है, सिंपल नहीं है, ट्रिकी है हल्की सी, बट आई हैव गिवन यू द सॉल्यूशन, यू वांट टू ट्राई ऑन योर ओन। हिंट, इससे स्टार्ट करना, हिंट ये करोगे, यू विल स्टार्ट विद दिस, आई हैव गिवन यू द सॉल्यूशन, मैंने सॉल्यूशन लिख दिया यहाँ पे, बट स्टार्ट विद दिस। कोई बच्चा अपनी कॉलेज की शुरुआत एक अच्छे कोडिंग से साथ करना चाहता है, कि कोडिंग का एक्सपोजर लेके जाना चाहता है, आप लोगों के लिए एक बड़ा अमेजिंग कोर्स प्लान किया है। खुद आईआईटी दिल्ली के और आईआईटी के पास आउट, आईआईटी से बीटेक करने वाले है ना हमारे एक मित्र हैं, जो जल्दी ही आपके सामने हम आपको दिखाएंगे भी, और आपके लिए ऐसा कोर्स की प्लानिंग हम कर चुके हैं। तो जैसे ही जेईई एडवांस आपका खत्म होगा, आपको इसके रिगार्डिंग हमारी टीम कॉल भी करेगी। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को जरूर फिल करें, आप क्यूआर कोड से स्कैन करके भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैं बार बार ये बात बोलता हूं, बदलते वक्त के साथ बदलिए। मेरा ऐसा अनुमान है, आने वाले जमाने के अंदर बेटा बहुत सारे जो पुराने कॉलेजेस हैं उनका स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। जिस आदमी के अंदर स्किल होगी वही आगे सक्सेसफुल होगा।
तो अगर वो ट्रैक बनता हुआ, आप भी समझ रहे हैं आजकल जो जमाना है एआई का, अगर वो जमाना बदल रहा है तो समझदार इंसान वही होता है जो जमाने बदलते जमाने के साथ एक एक कदम साथ साथ बढ़ाए। ऐसा ना हो कि बहुत आगे वो चला गया फिर मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो इनएविटेबल है, ये तो सबको सीखनी ही पड़ेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्रांच एज अ गुड बैकअप प्लान, ठीक है। तो कॉलेज की शुरुआत पहले से एक कॉन्फिडेंस के साथ करिए और बाकी मजे करते रहो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड बल्ले बल्ले मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। स्टे सब्सक्राइब ऑन द चैनल। कोई और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मुझे जरूर वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।